ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर, दैट विल बी ऑन द फेस ऑफ इट। What is given in this chapter? I think some information was given you in the last lecture. You will find two characters, Mr. Lamb and second Derry. And who is Mr. Lamb? Mr. Lamb is an old man. Derry is a young boy of 14 years of age. Third thing, he has an artificial leg or tin leg, and Derry's face is acid burned face. And due to this, what kind of thinking he has developed? Simply you can say he has developed a negative thinking, or you can say that there is a inferiority complex in him. Inferiority complex. And since he is suffering from inferiority complex, he becomes withdrawn, he becomes unsocial, he becomes introvert. But when the play begins, he goes to Mr. Lamb's garden. But what is it, how Mr. Lamb is different? He has a positive attitude towards life, and that is the theme also of this chapter. Ki when people feel some loss, and when there is a sense of isolation, कि when there is a sense of isolation, what people think and what people expect, they expect a need to bond with others, and some suffer from inferiority complex. So both are different. And when Derry goes to Mr. Lamb's garden, they strike a conversation, and what is the result of their conversation over there? That is basically given in this play. And this is a play, and usually play contains acts and scenes, but this play is a one act play, and there are just 2 or 3 scenes are there. So when the play begins, where is the scene? Mr. Lamb's garden. And how they start a conversation, that is given in this play. Can I have one book? Okay. So when the play begins on the face of it, before you read what is given, this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the foremost garden. Small boy. Who is small boy? Derry. And old man, Mr. Lamb. And where do they meet? In 1 and 2. Foremost garden. And who is former out of these two? Mr. Lamb. They meet in Mr. Lamb's garden, and they start a conversation. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defined. Withdrawn and defined? Introvert, or you can say unsocial. He does not like the company of people. And what is the bond that unites the two? Okay, what is the thing that keeps them connected? We will read and then find out. So just one act play, and in scene 1, what is given? Ki Mr. Lamb's garden. Scene is Mr. Lamb's garden, and there is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Like there is a figure of speech. What is the sound of snake called? Hiss. Bomb exploded, or boom. Like ice cracked. There is a use of onomatopoeia. So here onomatopoeia is used here. There is a what kind of sound is there? Bird song and of tree leaves rustling. फड़फड़ाने की आवाज आ रही होती है. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively. You know what is tentatively? Usually when board exams are there, so there is a date sheet that is released by CBSE. In the beginning, it is tentative date sheet. You know what is tentative? That is not fixed. There may be any changes. So tentatively through the long grass, it means he is not confident, and he can change his mind also. So through the long grass, he pauses and then walks on again. He stops for a while and then walks
again towards the garden because he likes the garden, the greenery of the garden. And he comes around a screen of bushes. Bushes, green shrubs are there, और screen का मतलब kind of hiding, kind of curtains are there. तो उसके पीछे तक वो पहुंच जाता है अभी वो. And so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand. Close at hand means he is very near, and Derry is startled. Derry is startled. Startled means surprised and shocked. He is surprised and shocked. Okay. Then they start a conversation. First of all, Mr. Lamb says, he mind the apples. Usually mind is noun, but here it is used as a verb. Imperative sentence is there, it is given at the beginning. So mind the apples means to take care of apples. Derry. Because he had not anticipated this. Correct? What? Who is there? कौन है? And who is there? Correct? कौन है? Mr. Lamb. Lamb says, Lamb's my name. It means he introduces himself, tells him his name. कि उसका नाम क्या होता है? His name is Mr. Lamb. And mind the apples. Again उसको थोड़ा सा warn करता है कि mind the apples. Why? कि crab apples those are. You know what is a crab apple? What is a crab apple? कि kind of apple that is hard, sour and small. Or simply you can say in the beginning kind of unripe apple. कि when they are small in size. Like a mango. When mango is ripe. तो mango और ripe से पहले क्या कह सकते हैं उसको? क्या बोलते हैं? कैरी बोलते हैं ना. तो like crab apples. तो crab basically एक इंसेक्ट भी होता है कि जिसको केकड़ा बोलते हैं. बट हेयर crab apples हार्ड स्मॉल एंड सोर एप्पल्स के लिए यूज किया गया था. तो मिस्टर लैम्ब उसको वार्न करता है कि देयर आर crab apples in the garden and wind falls in the long grass. Wind fall. हवा के झोंके से वो कहाँ पे गिरे हुए हैं? In the grass. And you could trip. और करा कि if you do not take care तो you can fall down. Trip का मतलब होता है ठोकर खा के गिरना. You can fall down. Derry. I thought this was an empty house. Empty place. तो Derry ने क्लियर किया. He thought the garden was empty. I did not know there was anybody here. It means he was unaware about someone's presence in the garden. And Mr. Lamb says, that's all right, correct, it's empty. I am here. What are you afraid of? Correct, if I am here, then what kind of fear you have? Boy, everything is right here. I thought it was empty. Again, he is reiterating to repeat. Correct, मैंने सोचा कि खाली कर दिया. An empty house. First garden, place, and then empty house. Mr. Lamb, so it is. Since I am out here in the garden, when I am out here in the garden, house is empty, it is empty until I go back inside. Two words are there, until and unless. Both are negative. Until used for time and unless used for yes. नहीं हो रही. Okay. I have to go use for when there is a compulsion. And if there is a wish, then what we should use? भाई मुझे जाना पड़ेगा, have to हो गया. और भाई मुझे जाना है तो क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? I am to go. Suppose उसे जाना है तो क्या कहेंगे? नवनीत. He has to go or is to go? Has to go means compulsion, जाना ही पड़ेगा. और he is to go का मतलब उसे जाना है. और उनको जाना है, उनको जाना है, they are to go. और उनको जाना पड़ेगा, they have to. जहाँ पे compulsion आ गया, that is has to, have to, और wish आ गया तो क्या यूज करेंगे? is MR. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? I have got to go now. Derry says goodbye. Mr. Lamb, nothing to be afraid of. करें कि डरने की जब बात थोड़ी है. Just a garden and just me. करें कि why? What are you afraid of? किस चीज का डर है? Derry says, but I am not afraid. I am not afraid. Pause. He stops for a while. People are afraid of me. He tells is a real problem. करें कि I am not afraid. But when people look at me, they become afraid. करें कि वो डरने लग जाते हैं भी वो. फिर Mr. Lamb कह रहा है कि why should that be? Why should that be means? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मीन्स कि वाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ यू. लोग तुमसे क्यों डरते हैं? देन
There he says everyone is, it doesn't matter who they are, what they say, or how they look, how they pretend. I know, I can see. It doesn't make any difference. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है, क्या कहते हैं, how they appear, what is their appearance and how they look, how they pretend, कि किस तरह से अपनी रियल चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं भैया. आई नो, आई कैन सी, कह रहे कि मुझे पता है कि मैं देख सकता हूँ. फिर डैडी कह रहे कि अच्छा, यू कैन सी, यू कैन विजुअलाइज, देन से व्हाट दे थिंक, देन कह रहे कि बताओ तो क्या सोचते हैं. मिस्टर लैम, व्हाट दे, कह रहे कि सी व्हाट, डैडी कह रहे कि व्हाट दे थिंक, यानी कि डैडी नोज व्हाट पीपल थिंक ऑफ हिम. डैडी को ये पता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं. फिर मिस्टर लैम कह रहे कि अच्छा, तो यू नो व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, देन टेल मी व्हाट डू दे थिंक, देन बताओ. डैडी सेज यू थिंक हियर इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक. इट मीन्स डैडी जो है वो लोगों की थिंकिंग को भी खुद की थिंकिंग मान रहा है. देयर वॉज ए डायलॉग, एक डायलॉग था ना इन ए मूवी ऑल्सो, कह रहे कि व्हाट पीपल थिंक, कह रहे कि लोग क्या सोचते हैं, ये भी हम ही सोचने लग गए, तो लोगों के पास सोचने के लिए क्या बचेगा. यू नो कौन सी मूवी में था कि लोग क्या सोचते हैं ये भी हम सोचने लग गए, तो लोगों के पास सोचने के लिए क्या बचेगा. यानी कि कई तो क्या होते हैं, क्या बन जाते हैं भैया, कॉन्ट्रैक्टर. ओडी कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है पता है, ठेकेदार. यानी कि कई तो क्या ले लेते हैं, ठेका ले लेते हैं कि भाई मेरे को उसके बारे में ये पता है ना. देन एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक कि दैट इज बैड, दैट इज ए टेरिबल थिंग. कह रहे कि बड़ी ही अनप्लीजेंट चीज है क्या, कि पीपल से व्हेन दे लुक एट डैडी, एंड व्हाट अदर पीपल थिंक ऑल्सो, और लोग क्या सोचते हैं कि दैट इज द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा. कुछ ये भी कहते हैं कि इससे अगली, अगली मीन्स नॉट गुड लुकिंग, इससे गंदी चीज नहीं हो सकती देखने में. यू थिंक पुअर बॉय हेल्पलेस, लेकिन कह रहे कि बट आई एम नॉट, कह रहे कि वट एवर यू थिंक, लेकिन मैं नहीं हूँ. दूसरों की सोच को बता रहा है लेकिन कह रहे कि मैं ऐसा नहीं हूँ. नॉट पुअर अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, कह रहे कि तुम ही डरे हुए हो. एनीबडी वुड बी, कह रहे कि कोई भी. आई एम, कह रहे कि मैं भी. व्हेन आई लुक इन द मिरर, कह रहे कि व्हेन पीपल लुक एट मी, और व्हेन आई माई सेल्फ सी इन द मिरर, कह रहे कि जब मैं खुद को देखता हूँ शीशे में, तो कह रहे कि मैं खुद से ही डर जाता हूँ. इसलिए वो उसकी जो थिंकिंग है ना, तो ही जर्नलाइज दैट थिंग, उस चीज को सबके ऊपर क्या कर देता है, वो अप्लाई कर देता है कि जब मैं सोचता हूँ तो लोग भी ऐसे ही होंगे. और वर्ल्ड में सबसे जो टिपिकल जो टास्क है और सबसे जो इजी टास्क है वो क्या होता है कि सोचना. आसान भी है और मुश्किल भी है. इट इज अप टू यू. कोई भी चीज होती है बाय डिफॉल्ट, इफ दिस इज देयर, अगर कुछ नहीं करेंगे, इसको मैं छोड़ूं तो वेयर इट विल गो, अप और डाउन. नेगेटिव तो अपने आप ही आ जाता है. फिर मिस्टर लैम कह रहा है कि नो द होल ऑफ यू, कह रहा है कि पूरे से डरने की जरूरत थोड़ी है. कह रहा है कि ओनली यू हैव द बर्न फेस, नॉट ऑफ यू. डैडी सेज यस, देन पॉज. ही अगेन चेंजेस द टॉपिक, और यूजुअली व्हेन यू हैव टू चेंज द टॉपिक यू कैन यूज वन फ्रेज, एक फ्रेज यूज कर सकते हो. क्या क्या यूज कर सकते हो. बाय द वे, इफ यू आर डिस्कसिंग ऑन पॉलिटिक्स, अगर आपको टॉपिक चेंज करना है तो यू कैन यूज बाय द वे. अरे चलो इसको छोड़ो, बाय द वे है ना. बाय द वे, मिस्टर लैम सेज लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर, व्हेन इट इज अ गुड एटमोस्फियर, आई विल गेट द लेडर एंड स्टिक. लेडर और स्टिक लेकर के जाएगा, सीढ़ी जिसको कहते हैं ना, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एपल्स. और कह रहा है कि सिंस ही इज द गार्डन, ही गोज इन द गार्डन यूजिंग स्टिक, यूजिंग ए लेडर. उनको तोड़ता भी वो. दे आर राइप फॉर इट, दे आर राइप फॉर इट मीन्स पके हुए भाई. लुक एट देम, आई मेक जेली, इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर सितंबर. आई मेक जेली, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड. व्हेन फैक्ट इज गिवन, तो आई मेक जेली, मैं बनाता हूँ. तो रूटीन को, फैक्ट को बताने के लिए क्या यूज करते हैं भी वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट. लाइक आर्टिकल राइटिंग में भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट. आई मेक जेली, इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर सितंबर. एंड लुक एट देम, ऑरेंज एंड गोल्डन. कह रहे कि लुक एट देम, कह रहे कि देखो कैसे हैं ये, क्या, क्रैब एपल्स. दैट्स अ मैजिक फ्रूट, आई ऑफन से, बट इट्स द बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली. एक में तो क्या यूज कर दिया अभी वो, इन वन सेंटेंस व्हाट हैज बीन यूज्ड हियर. आई मेक
jelly. And in the second sentence, it is made into jelly. यहाँ पे तो वही बात है, who. If focus is on who, you are using active voice. Who make jelly? Who? Mr. Lamb. और second में it is made into, it word used for apple. तो ये किसका आंसर है? Answer of what? And if your sentence begins with answer of what, it means that sentence is in passive voice. So why it is required? To form structures, to form sentences. So you have to take care. Okay? It is made into jelly. It is best picked and made into jelly. And you could give me a hand. You could give me a hand. हर्ष, हर्ष, मेरा एक काम करोगे? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिस सेंटेंस. मेरा एक काम करोगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करो. Will you do my work? Will you do my work? He is using a literal English. वो सिंपली लिटरल इंग्लिश का यूज कर रहा है. इसकी बजाय क्या होना चाहिए भैया? स्पोकन इंग्लिश लिटिल बिट डिफरेंट, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसकी बजाय फिगरेटिव और यू कैन से स्लैंग टू बी यूज्ड. व्हाट कैन बी यूज? विल यू डू मी अ फेवर. विल यू डू मी अ फेवर का मतलब ये हुआ मेरा एक काम करोगे. तो हियर मिस्टर लैम्ब आस्क डैडी टू डू हिम अ फेवर. मिस्टर लैम्ब उससे कह रहा है कि मेरा एक काम करोगे. विल यू गिव मी हेल्पिंग हैंड और विल यू डू मी अ फेवर. डैडी, व्हाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर? कह रहा है कि तुमने टॉपिक ही बदल दिया है. पीपल ऑलवेज डू दैट. कह रहे कि लोग ऐसा ही करते हैं, है ना, कि व्हाई डोंट यू आस्क मी, व्हाई डोंट यू आस्क मी. डैडी वांट्स मिस्टर लैम्ब टू आस्क डैडी हाउ हिज फेस वाज सो बैड, कि उसका फेस के साथ क्या प्रॉब्लम थी भैया. कि व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू. ही आस्क मिस्टर लैम्ब कि व्हाई यू बिहेव लाइक अदर पीपल ऑल्सो बिहेव. तुम भी लोगों की तरह ही क्यों बिहेव कर रहे हो भैया, है ना. इन केस आई कैन सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट. कह रहा कि इन केस आई सी यू लुकिंग. कह रहा कि अगर मेरा केस होता है, मैं तुम्हें देखूं, अगर तुम्हारा फेस ऐसा होता है एंड अगर मैं बुरा मान जाऊं तो गेट अपसेट, तो आई विल टेल. कह रहा कि मैं बता दूंगा. यू डू नॉट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू. लेकिन कह रहा कि मैं होता तो आई विल आस्क, बट सिंस यू आर अफ्रेड यू विल नॉट आस्क मी. कह रहा कि तुम डरे हो इसलिए मेरे से नहीं पूछोगे. तो डैडी मिस्टर लैम कह रहा कि अच्छा यू वॉन्ट मी टू आस्क, तुम चाहते हो कि मैं बताऊं ना, तो से सो देन, तो ठीक है बताओ. व्हाट हैपेंड टू योर फेस, व्हाट इज योर प्रॉब्लम. डैडी सेज आई डू नॉट लाइक बीइंग विद पीपल. आई डू नॉट लाइक बीइंग विद पीपल. इट मीन्स ही टेल्स अबाउट हिज इंट्रोवर्ट नेचर. अपने इंट्रोवर्ट नेचर के बारे में बताता भी वो, है ना. आई डू नॉट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, कोई भी लोगों भी हो. मिस्टर लैम आई शुड से टू लुक एट इट. कह रहा कि अच्छा फेस को देख करके. आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर. कह रहा कि फेस को देख करके. अच्छा मैं पूछूं तुमसे, तो व्हाट हैपेंड? गॉट बर्न इन फायर. कह रहा कि आग में जला कहीं पे. डैडी नॉट इन अ फायर. नाउ ही टेल्स द फैक्ट. कह रहा कि फायर में नहीं, आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस. एक साइड का जो फेस था वहां पे क्या गिर गया था? एसिड. एंड इट बर्न इट ऑल अवे. पूरा फेस जल गया. इट एड माई फेस अप. पूरा चेहरा ही क्या हो गया? खत्म हो गया भी वो. इट एट मी अप. कह रहे कि नॉट ओनली माई फेस, इट फिनिश्ड मी. कह रहे कि मैं खत्म ही हो गया एक तरह से, है ना. एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट. और कह रहे कि सिंस आई हैव एसिड बर्न फेस, कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन फेस. अब फेस में कोई भी क्या नहीं आएगा? बदलाव आएगा भी वो. मिस्टर लैम कह रहा कि नो दिस इफेक्ट नहीं आएगा. So Daddy says, are not you interested what I'm saying? कह रहा कि क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? Mr. Lamb, you are a boy who came into the garden. कह रहा कि you are just a boy. Plenty do. कह रहा कि बहुत सारे आ जाते हैं अभी वो. I'm interested in anybody. Interested in anybody. He tells about his gregarious nature. He tells about his what kind of nature? Gregarious को synonym क्या हो गया? Extrovert. Who likes the company of people, है ना? Then कह रहा कि I am interested in anybody, anything. कि there is nothing God made that does not interest me. कि anything that is natural, anything that is natural that does not interest me. ऐसी कोई भी चीज नहीं है. It means he likes every or not every.
ही लाइक्स ईच नेचुरल थिंग, उसको सारी नेचुरल चीजें पसंद होती हैं भाई वो। कैसे? देन लुक ओवर देयर, पॉइंट करता है एक पर्टिकुलर जगह पे, डैडी को बोलता है कि उधर देखो तुम, है ना, बिसाइड द फार वॉल, कह रहा है कि दूर जो वॉल है ना वहां पे देखो भी वो। व्हाट कैन यू सी? कह रहा है कि व्हाट इज विजिबल? डैडी सेज रबिश, कह रहे कूड़ा ही तो है। मिस्टर लैम, रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? कह रहे कि देखो क्या नजर आ रहा है अभी वो। डैडी सेज जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, ग्रास एंड स्टफ एंड वीड्स, घास फूस ही तो है। गुड वे टू पास, अच्छा वैसे गिर गई, किसने पास की है? हर्ष ने। गुड वे, वाईफाई की तरह है ना, हवा में। ओके, तो कह रहे कि क्या नजर आ रहा है भाई वहां पे? रबिश, रबिश मीन्स गार्बेज, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? कह रहे कि गार्बेज ही तो है, वीड्स ही तो है। फिर डैडी कह रहे कि जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, वीड्स क्या होते हैं भाई वो? अनवांटेड प्लांट्स। है देन मिस्टर लैम कि सम कॉल देम वीड्स, कह रहे कि कोई उनको क्या बोल देते हैं? सम कॉल देम वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। अच्छा आपने सुना भी होगा क्या? खेत फील्ड कितनों के हैं भाई? अब एक ग्रीन प्लांट, आजकल तो पेस्टिसाइड्स यूज करने लगे, पहले नहीं होते थे। एक ग्रीन सा जिसको हम खरपतवार ही बोलते थे, दैट इज वेरी यूजफुल थिंग। जैसे जिसके राउंड राउंड से क्या होते थे? लीव्स होते हैं। सांटी का नाम सुना है? किन्होंने नहीं सुना है? अच्छा यूज किया? हैवंट यू यूज्ड? हाँ, कढ़ी और हैं, पराठे भी बना लेते हैं और खट्टा भी बना लेते हैं। अब कह रहे खट्टा क्या हो गया? खट्टा आप सबको पता है? ओके, तो कह रहे कि वो कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर लैम्ब जो है, ही इज अ पॉजिटिव मैन, ही इज क्वाइट अ पॉजिटिव मैन। कह रहे कि जो वीड्स है ना, कि उनमें भी पॉजिटिविटी ढूंढता है भी वो। तो कह रहे कि सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, देन कह रहे कि चाहो तो वीड गार्डन भी बोल सकते हो। कि देयर इज अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, कह रहे कि इन माई गार्डन यू विल फाइंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको मिलेगा भी वो, ऑल सॉर्ट्स, बट ओवर देयर, कह रहे कि ऑन दैट पर्टिकुलर कॉर्नर आई ग्रो वीड्स देयर, आई ग्रो वीड्स, कह रहे कि मैं वहां पे खरपतवार उगाता हूँ भी वो ना। एंड वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड वीड एंड अनदर फ्लावर, कह रहे कि वाई वन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर एंड वन इज कॉल्ड वीड, खरपतवार। कह रहे कि वेयर इज द डिफरेंस? इट्स होल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। कह रहे कि कोई नेगेटिव वे में बढ़ जाता है, कोई पॉजिटिव वे में, जस्ट एज यू एंड मी आर ग्रोइंग डैडी, वी आर नॉट द सेम। लेकिन डैडी तो क्या भी हो, ही इज एडमेंट एट हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट डज ही से? कह रहे कि आई एम नॉट द सेम, वी आर नॉट द सेम। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, कह रहे कि जस्ट दिस इज द डिफरेंस, you have got a burnt face and I have got a tin leg. Tin leg means artificial leg, not important. You are standing here, I am sitting there. कह रहे कि एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है। Where is the difference? कह रहे कि डिफरेंस है कहाँ? फिर डैडी अगेन ही कहता तो नहीं बाय द वे, लेकिन ही चेंजेस द टॉपिक। डैडी कह रहे कि why have you got a tin leg? कह रहे कि what happened to your leg? क्या हुआ भाई? Mr. Lamb says a real one got blown off years back. कह रहे कि रियल वन तो years back किस में चली गई? वॉर में भाई, है ना, years back. Lammy Lamb, some kids say, कुछ आपने देखा भी होगा, कुछ क्या भी नेगेटिव, अब किसी का नाम निकाल देते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। जैसे फॉर्मर सीएम दी हरियाणा की क्या नाम था? चौटाला। अब किसी को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो कईयों का नाम, ये आपने देखा होगा, नाम नहीं है लेकिन फिर भी क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? चौटाला बोलते हैं कि नहीं बोलते? या किसी को कोई लंगड़ा है तो लंगड़ा भी बोल देते हैं। तो दिस इज अ फैक्ट। लेकिन कई क्या होता है कि यू शुड नॉट यूज बिटर फैक्ट्स, बिटर फैक्ट की बजाय आप यूज कर सकते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड बिटर फैक्ट्स को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में जैसे एक्सप्रेस किया जाए ना, तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज द यूज ऑफ कॉल्ड यूफिमिज्म। यूफिमिज्म क्या हो गया? अगर जैसे ये कहा जाए ही डाइड, डाइड तो सीधे सीधे भाई वो मर गया, मर गया की बजाय थोड़ा सा चेंज्ड वे में, थोड़ा सा बुरा भी नहीं लगे, क्या कह सकते हैं? रेस्ट इन पीस, प्लेस,
और क्या बोल सकते हैं, स्वर्गवास हो गया, या फिर ही पास्ड अवे, है ना, पास्ड अवे। तो पास्ड अवे जो यूज कर दिया ये क्या हो गया, यूफेमिज्म। तो लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर लैम जो है कह रहा कि ही डज नॉट माइंड कि व्हेन पीपल कॉल हिम लैमी लैम, कह रहा कि जब उसको लैमी लैम बोलते हैं। सम किड्स से हैवंट यू हर्ड देम, डैडी से कह रहा है कि तुम्हें रास्ते में लोग नहीं मिले, बच्चे नहीं मिले, हु कॉल लैमी लैम, यू विल लैमी लैम, इट फिट्स, इट डजंट ट्रबल मी। लेकिन कह रहा है कि आई डू नॉट केयर, आई डू नॉट माइंड व्हाट पीपल से, डैडी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप। डैडी कम्स विद अ सॉल्यूशन, कह रहा है कि यू कैन सोल्व योर प्रॉब्लम बाय हाउ, प्रॉब्लम सोल्व कैसे कर सकते हो, क्या पहन लोगे, कोई ट्राउजर पहन लोगे तो ट्राउजर के अंदर छुप जाएगा, एंड नो वन सीज, कह रहे कोई नहीं देखा, दे डू नॉट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, कह रहे कि लेग को अगर आपने कवर कर लिया तो कोई भी स्टेयर भी नहीं करेगा भी वो। देन मिस्टर लैम कि सम डू नॉट, कह रहे कि कुछ ऑब्जर्व करते हैं कुछ नहीं करते, दे गेट टायर्ड ऑफ इट, कह रहे कि दिस इज माई करेक्टरिस्टिक, दिस इज माई फीचर, नाउ आई एम हैंडीकैप, 3 लेग है, तो कह रहा है कि लोग अब इस चीज को डिस्कस करते करते क्या हो गए भैया, दे आर टायर्ड, एंड इन द एंड कि देर इज अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, कह रहे कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लुक कंटिन्यूसली देखने की जरूरत है, टू लुक कंटिन्यूसली क्या होता है, स्टेयर, घूरने की जरूरत है भी वो। डैरी अगेन सेंटर हिमसेल्फ, क्या कहता है कि लाइक माई फेस, कह रहे कि मेरे फेस की तरह है, लेकिन मिस्टर लैम वो थोड़ा सा क्या नहीं होता भाई, वो इरिटेट नहीं होता है, मिस्टर लैम उसको बिल्कुल आराम से कहता है कि लाइक क्रैब एपल्स और द वीड्स और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लेडर, कह रहे कि सो मेनी नेचुरल थिंग्स आर देयर टू लुक एट, बहुत सारी चीजें देखने के लिए, और माई टॉल सनफ्लावर्स, कह रहे कि टॉल सनफ्लावर भी हैं। डैडी सेज, कह रहे कि व्हाट यू हैव चेंज द टॉपिक, कह रहे कि आई वाज जस्ट डिस्कसिंग अबाउट माय फेस, ये तो थिंग्स है। मिस्टर लैम इट्स ऑल रिलेटिव, कह रहे कि सब आपस में कनेक्टेड है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। डैडी कि व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, कह रहे कि उसका क्या मतलब हुआ। डैडी सेज, सॉरी मिस्टर लैम कह रहे कि यू टेल मी। जब मिस्टर लैम कह रहे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट, डैडी व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, कह रहे कि इसका क्या मतलब बता, इफ यू हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट। देयर आर सम थिंग्स जिनको कि हम क्या बोल सकते हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स जिनको कि हम क्या बोलेंगे, इमेजरी, और यू कैन से सिंबलिज्म, और यू कैन से एलिगरी, यानी कि किसी के थ्रू किसी पॉइंट को क्या करना भाई, वो किसी पॉइंट को क्या करना, इलेबरेट करना। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक व्हेन यू वर इन 10th देयर वाज ए पोएम फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, हाउ मेनी ऑफ यू रेड दैट पोएम, सबने पढ़ी होगी है ना। तो उसमें जो फ्रॉग जो है था, फ्रॉग, आप उसको दैट कैन बी कॉल्ड एन एलिगरिकल पोएम, फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। तो फ्रॉग एनिमल क्या हो गया, क्रिएचर हो गया, लेकिन फ्रॉग जो है वो सिंबल है, किस चीज का सिंबल है, इज ए सिंबल ऑफ कनिंगनेस, और नाइटिंगेल इज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस। तो यहाँ पे जो ब्यूटी एंड द बीस्ट आर है, इट इज नॉट द थिएटिकल, इट इज नॉट द फिगरेटिव, just symbolically used here, beauty and the beast. I write here the name of one book, the name of one book, Eat That Frog. This is the name of a book. What does it mean? Mohit, पता है? Anyone? If you take it literally, अगर आप इसको literally लेते हो तो it means भाई फ्रॉग को खाना, and it is culture in some countries, चाइनीज तो सब कुछ खा लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या, फ्रॉग हेयर यूज्ड फॉर, इसको हिंदी में पता है क्या कहेंगे, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, इसका मतलब ये हुआ। तो लिटरली लेने की बजाय इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या हो गया, सबसे मुश्किल काम सबसे
पहले। तो यहाँ पे भी क्या है कि लिटरल की बजाय एलिगोरिकल और फिगरेटिव मीनिंग निकल के आएगा, किसका? ब्यूटी एंड द बीस्ट का। डैरी सेज कि व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, उसका क्या मतलब हुआ? डैरी यू टेल मी। फिर डैरी सेज यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर। फेयरी स्टोरी कौन सी होती है? यूजुअली परी कथा, यूजुअली स्टोरी दैट हैज ए हैप्पी एंडिंग, लाइक द यूजुअल स्टोरीज ऑफ रोजर, अनलाइक रोजर स्कंक स्टोरी। कह रहा कि आई हैव हर्ड सो मेनी थिंग्स। किस तरह की बातें? इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक। कह रहा कि व्हाट इज योर अपीयरेंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज व्हाट यू आर इनसाइड। इनसाइड का मतलब कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू हैव, कह रहा कि दैट मैटर्स। हैंडसम इज एज हैंडसम डज। कह रहा कि हैंडसम वो ये जो सुंदर काम करे, है ना। कह रहा कि आई हैव रेड ऑल दीज थिंग्स। कह रहा कि मैंने ये सारी चीजें सुनी भी हूँ। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो डू नॉट टेक इट लिटरली, इट मीन्स कि सम unpleasant task is to be completed, so it is a little bit tedious, but if you finish it then you become a winner बन जाते हो, है ना। कि only he would have stayed a monstrous beast। कह रहा कि अगर ब्यूटी ने उसको ऐसा नहीं किया होता तो monstrous होता है, ह्यूज साइज का बीस्ट बना रहता है। कह रहा कि I have read everything but these won't make any difference to my face, I won't change। कह रहा कि मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर डैडी मिस्टर लैम कह रहा कि इन दैट वे, कह रहा कि अच्छा अभी तक तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस था यू आर थिंकिंग इन दैट वे, नो यू वॉन्ट। फिर कह रहा कि ही टेल्स द फैक्ट, कह रहा कि हाँ तुम में कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर डैडी कह रहा कि एंड नो वन विल किस मी, कह रहा कि नो वन विल लाइक मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। कह रहा कि वो भी किस करती है, क्यों? आई डू नॉट लाइक मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू वाली बात थी ना, कहाँ पे किसके लिए करेंगे? कंपल्शन के लिए, कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वाई शुड आई लाइक दैट, कह रहे कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ? आई डू नॉट केयर इफ नो बडी एवर किसेज मी, कह रहे कि डू नॉट पीपल डू नॉट लाइक मी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भी वो। मिस्टर लैम बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, कह रहे कि बिकॉज आई रोट हियर द नेम ऑफ वन बुक, ईट दैट फ्रॉग, कि देयर इज ऑल्सो वन बुक, देयर आर टू बुक्स दैट यू शुड रीड। अगर आपको अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा क्या करना है भी हो, पॉजिटिव बनाना है, ब्रॉडर बनाना है, दीज आर रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी, वेरी गुड बुक्स टू रीड, टू बी रेड, ओके। तो कह रहे कि डू यू केयर इफ नेवर किस देम, डैडी व्हाट, कह रहे क्या कह रहे हो? मिस्टर लैम गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, फिगरेटिव, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज। लास्ट में वो क्लियर कर रहा है कि पीपल यू लव, कह रहे कि जिनको तुम पसंद करते हो, लाइक की एक्सट्रीम जो सेंस है वो क्या होती है कि लव, पीपल यू लव। देयर इज हु वुड लेट मी, कह रहे कि हु विल अलाउ मी टू डू दिस, नॉट वन, कह रहे कि कोई नहीं। मिस्टर लैम सेज हु कैन टेल, कह रहे कि कौन बता सकता है। लेकिन मिस्टर डैरी सेज आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, कह रहे कि देयर वॉन्ट बी एनी चेंज व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, कह रहे कि इवन इन माई ओल्ड एज आई विल बी द सेम, कह रहे कि मैं ऐसा ही रहूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ फेस, कह रहे कि आधा ही फेस रहेगा। मिस्टर लैम सो यू विल बट द वर्ल्ड वॉन्ट, कह रहे कि ठीक है तुम जैसे रहेगा बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी वर्ल्ड विल चेंज टुवर्ड्स यू, वर्ल्ड तो बदल ही सकते हैं ना। द वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस, कह रहे कि वर्ल्ड का पूरा फेस, एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, कह रहे कि वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, कह रहे कि यू कैन अप्रिशिएट द वर्ल्ड्स ब्यूटी। डैडी डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, कह रहे कि तुम्हें क्या लगता है दिस गार्डन इज अ वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। मिस्टर लैम कह रहे कि व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, कह रहे कि जहाँ पे भी जाओ तो यू कैन बी एट होम। बी एट होम का मतलब क्या होता है भैया? टू बी एट होम मीन्स टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। देन अगेन डैडी यूज करता है बाय द वे यूज नहीं कर रहा, बट अगेन ही चेंजेस द टॉपिक, डज योर लेग हर्ट यू, टॉपिक चेंज करते हैं ना, क्योंकि वो उसकी थिंकिंग को प्रोसेस कर रहा है पॉजिटिव की तरफ। लेकिन अगेन डैडी चेंजेस टॉपिक, कह रहे कि डज योर लेग हर्ट यू, कह रहे कि लेग में दर्द हो रहा है। मिस्टर लैम पिन डजंट हर्ट बॉय, कह रहे कि मेटल में पेन नहीं होता है भी वो। डैडी व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, व्हेन इट केम ऑफ मीन्स कि व्हेन योर लेग ब्लोन ऑफ इन वॉर,
करेक्ट, एट दैट टाइम डिड यू फील पेन, करेक्ट, तब वो सर्टेनली, करेक्ट, यस डेरी। एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स, करेक्ट, अब जहाँ पे एट द टॉप ऊपर दर्द होता है कभी कभी, डेरी पूछता है, करेक्ट, होता है। मिस्टर लैम सेज नाउ एंड देन इन वेट वेदर, मॉइस्ट वेदर हो भी वो, देन it doesn't signify, oh, that is something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and do not feel sorry for themselves. करेक्ट, I have been motivated alone. करेक्ट, मुझे खूब मोटिवेट किया गया अभी वो, करेक्ट, लोगों पे नहीं, तुम अपने पे ध्यान दो, करेक्ट, मैंने खूब सुन लिया अभी वो। लेकिन मिस्टर लैम करेक्ट, I haven't said it, करेक्ट, मैंने तो ये नहीं कहा। Derek has, and think of all those people, correct, how, what kind of conditioning he has been given by the people, correct, and think of all those people worse off than you, correct, I have been conditioned, correct, मेरी ये भी प्रोग्रामिंग हुई है कि मुझे ये भी बताया गया है कि उन लोगों के बारे में सोचो, just think about those people who are in worse condition than you are, correct, तुम्हारा तो फेस ही है, बल्कि किसी का आई नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहा, किसी के कान नहीं है, कह रहे कि उनसे पूछो भी वो, डेरी। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, कह रहे कि आई हैव बीन मोटिवेटेड, कह रहे कि ब्लाइंड भी हो सकता था, और बोर्न डेफ, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, कह रहे कि व्हील चेयर में भी तो रह सकते थे, और बी डेफ्ट इन योर हेड, डेफ्ट का मतलब क्या होता है भी वो, फूल, कह रहे कि दिमाग नाम की चीज़ नहीं होती। एंड ड्रिबल, वैसे ड्रिबल मीन्स इट्स अ टर्म दैट इज यूज इन द गेम ऑफ हॉकी, बॉल को नजदीक रखते हैं, गोल्फ, फुटबॉल में भी यूज करते हैं, ड्रिबल फुटबॉल में भी होती होगी, कई कॉमन टर्म, बट हेयर ड्रिबल वर्ड यूज फॉर इफ अ पर्सन हु इज अनेबल टू कंट्रोल हिज ऑर्गन्स, तो जिसके मुंह में से क्या निकल रही है अभी वो, लार निकल रही है, तो कह रहा है कि ऐसे, यानी कि तुम पागल भी तो हो सकते थे, उन सब से तो ठीक ही हो कि ओनली योर फेस इज बर्न्ड, इट मीन्स हेयर मिस्टर लैम ट्राइज to change the negative thinking of negative thinking of डेरी की नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करता है कौन, मिस्टर लैम। तो विल ही बी सक्सेसफुल, वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट पार्ट, ओके, थैंक यू।